this deployments. Show network. Okay, here the IP address, it is showing 1.2. Okay, I need to change it to 0.11. Okay, so set network. All HA configuration is performed from the GUI. This interface is used only to configure the standalone node to join the grid. Okay, so 192.168 डॉट। अभी इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें ये बोल रहा है ऑल एच ए कॉन्फ़िगरेशन इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द जीयूआई, दिस इंटरफेस is used only to configure a standalone node or to join the grid। इसका मतलब क्या है कि ये जो LAN 1 इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, इस ग्रिड से ज्वाइन करने के लिए मेरे को ये आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो ऑलरेडी ग्रिड मास्टर अभी वर्क कर रहा है, शायद ये आप आ गया होगा, ये बूट हो रहा है अभी। ये भी फेल हो गया क्या? अरे बाप रे। शो स्टेटस, तो हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया क्योंकि सडनली ये स्टॉप नहीं हो पाया था और ये चला गया था, तो पूरा फिर से नए सिरे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ। अभी LAN 1 पे इस पे आईपी एड्रेस देते हैं पहले। शो स्टेटस देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं उड़ा है। ओके, बट यहाँ पे भी लोकल डोमेन बता रहा, मतलब ये भी गया। अच्छा, लाइसेंस और चेक कर लेते हैं। लाइसेंस इसका है, इसका क्या है लाइसेंस? लाइसेंस इसका भी है, ठीक है। सेट नेटवर्क 192.168.0.11 इसको देता हूँ मैं। ओके, 0.1 नो become a great member, नो। ओके, दिस इज करेक्ट। लास्ट टाइम नो कर दिया था, अब एक बार रिबूट होगा। तब तक इसको मैं शट डाउन करता हूँ पहले। तो अभी इसमें जो ग्रिड का नेम आ रहा है, अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रिड का नेम दिखा रहा है infoblox.localdomain। अगर मैं ये ही रखता हूँ, इन्फोब्लॉक्स हटाना पड़ेगा। लोकल डोमेन रख सकता हूँ, अगर मेरे को कॉम नहीं रखना है तो लोकल डोमेन रख सकता हूँ। बट अगर मैं उसको इन्फोब्लॉक्स ही रखूंगा तो ये ग्रिड ग्रिड एच ए कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने देता ये डिफॉल्ट उस पर।
ठीक है, इसमें LAN 1 पे मैंने 0.11 कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेट फिक्स करना पड़ेगा। एक बार GUI पे आ जाए। ठीक है, LAN 1 पे IP तो आ गया है। ठीक है, अभी इसका आई थिंक सर्विसेज अप नहीं हुई है, जब तक इसको देखते हैं। ये आप आ गया। ये पूरा रीसेट हो गया था प्लस। ओके, अपन ने डेटाबेस रीसेट किया था तो पूरा रीसेट हो गया था। अब तब तक दूसरी डिवाइस भी देखते हैं, 0.12 आई की नहीं। इट विल टेक सम टाइम। तो अभी ये itself treating itself as a grid master. Okay, the BIP or master IP address is 0.11. Okay, we need to rectify all the settings. Okay, so first I will go inside the general setting. Here I am changing the host name. I am putting the HOA dot karmareturns.com. इसमें पहले से था बकेट में तो दिखा दिया इसने। और इसके बाद नेटवर्क, तो नेटवर्क सेटिंग इसकी देना पड़ेगी हमको। So now I'm asking that I want to make this high availability pair. Okay, so whenever you will configure the high availability pair, whatever the existing configuration of the IP address on your node, if you'll see, this is the default IP address of the interface, that is 0.11. Okay, so this will become as a VIP of that particular pair, HA pair. Either you are making the uh, grid master candidate HA pair, or either you are creating the grid members HA pair. In that situation, that initial IP that is configured on the active device wherever you are doing the configuration, that will become as a BIP address. After that you can configure another IP addresses. So node 1 IP address, node LAN 1 IP address, node 2 LAN 1 IP address. Okay, so now this node 1 LAN 1 IP address is 0.11, but it will change. Okay, it will change. So node 1 LAN 1 IP address, what you want to change within the same series. So I am putting here
uh, it's 30, let's say. Okay, and I will ask that your node 2 or pair interface IP address could be 12. Okay, and here I am putting the IP address 0 dot 14 and 192.168.0.15. Okay, so this will your IP addresses schema. Now I am adding the interface, management interface here. I am putting here 192.168.1.1. Okay, this is the bogus IP address I am going to enable here because I want to change the IP address. Sorry, I made it the mistake. I need to change it. Okay, I'll change 254 192.168.1 dot to I'm not getting that IP address now. I need to put more 192.168 dot 0 dot no, it will not allow 1 dot no. Here I don't want to give this range, so I will change this range. Okay, later part we can configure the HA pair. Okay, so first I need to configure this one. After that we will configure the HA. Change I will we need to change the IP addresses first. Similarly we will do here also. So are we rebuilding two nodes or we are rebuilding only one node? Both two nodes we are rebuilding because suddenly my PC shut down now. So this configuration both the database are reset. Okay. Okay, that configuration is gone, completely gone. I don't know what is happening inside the grid member and Windows system or server. We'll see later. So by default it takes the IP 192.168.0.11. Ha. No, it is taking the 1.1 series IP address. Okay, okay, Okay. 1.1. Now we need to fix the interface setting. This is the lab environment bug, let's say, but in production it won't happen.
सॉरी, सेट नेटवर्क 1 मिनट प्लीज। ज्योति सुनना, दम वाली चाची का फोन आ रहा था, काट दिया है, लगा के पूछ। मैंने, मेरी कॉल चल रही ना, क्या पता तो होगे सब लगा ले। नहीं लगाया था, काट दिया मैंने, लगा के बात कर लो क्या कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसा ही है। उधर ही जाके बात। हेलो, कौन लगाएगी चाची आपने? हाँ ना, ठीक है, वही मैं भी सोच रही थी धोखा से लग रहा हो चाची से। नहीं, वो कह रहे थे जो नंबर ऊपर गए थे ना, वही पे कॉल हो जाते। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, तो ठीक है, जैसा हो ठीक है। टेंशन बनाने का टेंशन होता है, हो गई जाती कोई। हाँ लेकिन वहाँ तो है जाती, इस टाइप से होगा भेदभाव करे तो हम शांति रहेगा, तो उन्हें समझे से जाती। वो तो कहने की बात शांति चला, शांति से तो रहने चाहते थे। देखो चाची शांति से रहना चाहते हैं, इसलिए चीजों को सुधारना चाहते, लेकिन सामने वाले को चीजें सुधारना नहीं है और सुधारना है, तो शांति रह चाहती। नहीं, वो तो ध्यान नहीं है ना, उनको नहीं चलाना लोग, इसके लिए समझ आ रहे हैं। नहीं सही 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 होता है, वो परफेक्ट गलत होता है। आपको दिखता भी है जो बोलता है, जिसको बोलते हैं वो सब समझ में दिया। इसके मामले में तो गलती भूली जाती है, सुधार किया जाता है, और हमारे नहीं करी जाता और वो दिनों दिन और होती है। हाँ ठीक, अपन शांति अपन शांति पर नहीं चाहती, नहीं चाहती, ऐसे नहीं हो चाहती। आप जो आप बोल रही हो, बोलने में कुछ लगाते हैं, तो चीजें कई सारी एक, हाँ तो एक गलती करता है और दूसरे को सहन करता है, वो शांत। नहीं, एक शांत रहता है और सहन करता है, और दूसरो अशांत भी रहता है और हरकतें भी करता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। नहीं दे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चाहेंगे नहीं, हम शांति चाहिए ही नहीं है ना, उसके ऊपर पर भी हम शांति चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे हम नहीं चाहिए। कहते होते ऐसे हो रही है ताकि हम शांति बनाए, शांति सबसे अच्छी है, शांति सबसे अच्छी है। तो जैसी रहती है, जैसे जाति जैसे ग्रोथ है, वो तो जैसे जाता से भी समझ कर जाता। आप 5 भाई थे, आप एक दूसरे से बगैर सलाह के सब कर लेते थे, मन में चाहते हो खुद का काम है तो उसमें आके पार्टनर करवाते थे, अभी तुम सामने वाली है, जब अपना खुद का भी कुछ करवाते थे कुछ नहीं आता तो आप क्या है ऐसे कर ले, जब देखो जाने तो सामने आती है तो भी तुम नहीं सुन रहे, कर जाए करो करते आप। हाँ हाँ ठीक। Why this is not changed? शांति शांति रखो, शांति सब शांति बा, तुम सामने वाले के सहन भी करे जाओ, शांति ही रखो और बेबी भी मचाए रहे। मैंने भी वही एग्जांपल दी ना, मैं किसी कहते ना चाहती थी तुम्हारे चाचा तो सही अपना बोला। खुद का भी काम करवाते थे, पूछते थे पापा से जिधर से तो सामलाते वाला है तो भी नहीं पूछना तुमको। It is not changing.
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अब भी सारा सेट हो जाएगा। तक सेकेंडरी को एक बार रिमूव करता हूँ। ठीक है, अभी हम प्राइमरी पे चलते हैं। ठीक है, यू कैन सी इन द CLI the LAN 1 node IP address is 3.11 and the management interface IP address is 0.11. Now we will check in the similar in GUI. So in GUI we have to go and configure the interface first. So first I will change the grid name here. Okay, I want to change the grid name. So the name I want to keep the same karmareturns.com and secret I want to put test 1 2 3 4 5 6. I'm going to put the same secret. This is small or cap. Okay. Okay, so with the help of this secret you can join your member or master candidate with the grid. Okay, time zone I am keeping the remain same. I am not going to change anything. Okay, as I said, it uses the VPN port 1194 for authentication. After the authentication, so just this secret will authenticate over this port number 1194. This is the UDP. So once it will authenticate, it will use the 2114 UDP to communicate and share the data. Okay, so now the grid name I have changed and set the secret also. Now the grid name has changed. We'll see later. After this configuration,
So this applies name HOA karmareturns.com. Okay, so now I am putting the configuration to make this appliance as a HA. Okay, so I am putting the router ID. This is the BRRP router ID. Okay, we are not using the interface 2, so no need to put the BRRP ID for LAN 2. Okay, so suppose you are using two interfaces with the different IP address. Sometimes suppose LAN 1 you are running the DSCP services and the LAN 2 you are running the DNS services, so you can make the high availability like that also. Okay, but here in this environment we are not using the LAN 2 interface, so I am putting the BRRP ID that 1 to 255 I can put any. Okay, so this is the BRRP ID that at 66 we are keeping here. Now as I said, this will be the VIP address or virtual IP address for the BRRP. Okay, so after that I need to put the my peer interface IP address first. Okay, so I am putting the my peer IP address is 192.168.3.12. Okay, similarly we will put the management interface IP address 0.12. Okay, so we will put the same, and what would be this IP address? Okay, so this I will put 192.168.3.13. Okay, and we can put is here 13 14. Okay, 3.15. Okay, so your IP addresses are configured. Whenever you will convert this appliance, it will start finding the its peer with the BIP address and this node IP address. It will start finding its peer to convert as a BRRP pair, HA pair. Okay, so we will see this also. This is asking the redundancy over the LAN 1 and LAN 2, okay, and the default root redundancy over the LAN 1 LAN 2. You can understand this as a network engineer, okay. So whenever your LAN 1 HA breaks, I mean LAN 1 interface is down, so it will use the LAN 2 to provide the services and make this the HA pair available, so it will use to send the heartbeat intervals and BRRP messages over LAN 2. Okay, so it will use, okay, to run the BRRP both. It will not break the BRRP, right? So another thing you can see, whenever you will enable the high availability pair, there are two options: a standalone member, either the grid master or grid member. Okay, standalone, either you are making the high availability pair. So whenever you will select the secondary option, it will enable to put the interface management, or if you are configuring, so you need to configure both, otherwise you can keep blank for both. It's not like that you are configuring the management interface for the node 1 and you are keeping blank for the node 2. So I am putting here the 192.168.0.2. This is the node 2 management interface IP address. Gateway would be same. Okay, whenever I will put here this appliance and I will make it reboot, it will go and save the configuration and reboot. Okay, it is showing the warning message. Okay, changing the network settings of this grid member may affect services on other members. To avoid service discrepancies, restart services on the affected members on all members. Suppose multiple members are joined with this appliance, okay, and you are making this appliance as a pair, so that member device may be out of sync, so you need to restart the services both end by using the CLI commands or GUI command. Okay, so another parameter, changing the management port configuration of the grid member will restart the member. Okay, it can restart, it's not an issue. Okay, we have the change window, let's say. Okay, changing the LAN 2 configuration of the grid master will restart the grid master. Again, it is giving the warning, but it will do if you will change the configuration whatever you applied. Okay, so I'm okay to restart this appliance. Okay, you can see in the CLI, it is going to restart the pair. Okay,
Similarly, I am going to delete node LAN 2, it's not required. For LAN 1, I want to run the Wireshark. Okay, Bimal ji, are you there? So you can see here it is sending on this node 1, this is receiving the OSP messages. Okay, after that I can stop it, right? Okay, now that the device is rebooted, okay, with the HA configuration. So you can see it's finding its peer, okay, with this MAC address. This is the MAC address, and then the IP address of the peer. Okay, so it's asking who is the 3.12. We don't have now, right? Now go back in the configuration. If you will access this device with 0.11, I don't know it will come or not, because 0.11 will always be the BIP. So you can access your HA pair through the 0.11. Okay, we'll see. Now we need to get ready the secondary appliance. Okay, I am going to access the 0.12. We'll see why it is not coming. LAN 1. Okay, so I need to shut it down. Shut down. Okay, so I want to access this 0.12. It should come. Okay, it's reachable. Please wait for a moment. It will come on GUI. After that, we will change the interface configuration and join this device as a grid member. Okay, but it will not a grid member. It will become as a. It will convert as a grid master candidate. अच्छा एक चीज बताओ, हाँ, ये फायरवॉल के पीछे लगाओगे, डीएमजी में लगाओगे, लैन में लगाओगे, किधर लगाओगे क्या चीज? ये एनोलॉग्स को? फायरवॉल के पीछे
फायरवॉल के पीछे मतलब किधर, कौन सा डायरेक्ट मतलब It depends. If you want to use your appliance as a internal network only, internal DNS, let's say internal DNS and internal DSCP, then obviously it will be inside zone or uh, security level 100. ओके, अगर आप इसको पब्लिक डीएनएस पे रखना चाह रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आप उसको डीएमजी पे रखोगे। नहीं, जैसे क्वेश्चन है, अगर कुछ हमारे वेब सर्वर पब्लिक फेसिंग है और इंटरनल जो हमारे जो यूजर्स हैं उनको भी सर्विस चाहिए, जैसे डीएचसीपी चाहिए और उनको डीएनएस रेजोल्यूशन चाहिए, जो इंटरनल जो यूजर्स हैं उनको, और जो नहीं तो उससे इसको मतलब नहीं है। आप देखिए जो भी यहाँ पे जहाँ भी कनेक्टिविटी दे रहे हो आप, तो इसको आप जो राउटिंग नेटवर्किंग है, जो नेटवर्किंग कैसी करके रखी है, नेटवर्किंग के थ्रू रहेगा ना, वहां तक इसकी रीचेबिलिटी होना चाहिए डीएचसीपी की। तो इसमें दो नेटवर्क चलेगा ना, ओवरले और अंडरले। नहीं, ओवरले अंडरले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एज पर डिजाइनिंग प्रोसेस किधर होना चाहिए। जैसे अगर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट है कि जो इंटरनेट से उनको रिसोर्स चाहिए, आप डीएमजी में रखोगे आप, जो जैसे आपको डीएनएस नहीं तो या वही चीज बोल रहा हूँ पब्लिक आपको, डीएनएस जैसे है ना, तो उधर आप डालोगे। जैसे और जैसे बेसिक, डीएचसीपी है हाँ और इंटरनल जो यूजर्स है जो लैन के, उनको भी चाहिए डीएनएस और डीएचसीपी चाहिए। हाँ तो फिर आप दोनों को एक जगह रखोगे, मतलब इंटरनल मतलब प्राइवेट और जो पब्लिक है, या फिर दोनों को सेग्रीगेट करोगे, दो जगह आप डिप्लॉय करोगे, एक इंटरनल लैन में करोगे, एक डीएमजी में करोगे। देखिए जैसे मेरा अभी जो करंट सेटअप है, करंट एनवायरनमेंट है, उसमें इन्फोब्लॉक्स को हम सिर्फ इंटरनल डीएनएस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इनसाइड लैन में होगा ठीक वो। है, और सेकंड थिंग जो आप पूछ रहे हो कि डीएमजी में कैसा करेंगे, तो डीएमजी में हमने सेपरेट करके रखा हुआ है, सेपरेट डीएमजी डीएनएस सर्वर है, तो वो विंडोज का है पूरा, ठीक है। और एक्सटर्नल डीएनएस के लिए है पब्लिक डीएनएस, पब्लिक डीएनएस अल्ट्रा डीएनएस चल रहा है बेरकारा। तो तीनों नेम स्पेस अलग अलग है। अब तीनों में हम जब कमिट करेंगे, जैसे इंटरनल डीएनएस है, जब हमारा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो वो रूट हिंट्स पे जाएगा ना। अच्छा, एक और चीज है, डीएनएस की बात की है तो डीएनएस जो है, एक एक आता है ओवरऑल पब्लिक डीएनएस, ठीक है, हाँ जो सिर्फ इंटरनेट को सर्व करेगा। दूसरा जो है स्प्लिट डीएनएस आता है, जो हाइब्रिड मोड का होता है। आपके सेटअप में कौन सा है? और इधर इनको ब्लॉक्स में अगर दोनों रिक्वायरमेंट है तो क्या होना चाहिए? या फिर ऐसे इंटरनल लाइंस को सर्व करना है तब तो कोई बात नहीं है, आप डिप्लॉय कर दो इनको ब्लॉक्स, और वो डीएचसीपी डीएनएस सब जो है सर्व करेगा। लेकिन डिपेंड अगर कर रहा है, देखिए जैसे डीएनएस है, डीएनएस पे हमने यहाँ पे सीनेम रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। सीनेम रिकॉर्ड कहाँ पॉइंट कर रहा है? लोड बैलेंसर के वेब को। क्यों? कोई एप्लीकेशन है अगर उसका यूआरएल लोड बैलेंसर पे है, ठीक है, उस वेब के बिहाइंड में 3 वेब सर्वर रखा हुआ है और एप्लीकेशन सर्वर रखा हुआ है। तो कोई भी इंटरनल यूजर है उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो उसका अलियास नेम वो ब्राउज करेगा, वो अलियास नेम पे क्वेरी कहाँ जाएगी? डीएनएस पे, इन्फोब्लॉक्स डीएनएस पे। इन्फोब्लॉक्स उसको रिडायरेक्ट करेगा लोड बैलेंसर पे, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि ये एप्लीकेशन का जो यूआरएल है लोड बैलेंसर पे पॉइंट कर रहा है, तो वो लोड बैलेंसर पे पॉइंट करेगा। तो ये इंटरनल जो मैकेनिज्म है पूरा है एलटीएम और इन्फोब्लॉक्स डीएनएस के बीच में, ये तो इंटरनल सेगमेंट में चलेगा पूरा। तो उसके लिए इसकी रीचेबिलिटी होना चाहिए। तो जैसे अब हमारे यहाँ है तो नेटवर्क टीम सेपरेट है, सिक्योरिटी टीम सेपरेट है और डीएनएस टीम सेपरेट है, आई मीन इन्फोब्लॉक्स टीम सेपरेट है। तो हमको रीचेबिलिटी दी हुई है, अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो रीचेबिलिटी देना पड़ेगी कि जो भी हमारे जो सर्वर हैं, एप्लीकेशन सर्वर है, वहां तक रीचेबिलिटी होना चाहिए, तब वो इंटरनली चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक सीनेम बनाया और सीनेम पॉइंट कर रहा है किसी बाहर की एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू, तो उसकी रीचेबिलिटी फायरवॉल पे ब्लॉक है कि नहीं है, उस पे फिर पोर्ट 53 ओपन होना चाहिए और उस एप्लीकेशन के स्पेसिफिक पोर्ट से वो ओपन होना चाहिए, तभी तो वो यूजर को ब्राउज हो कर पाएगा वो उसको। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ना, जैसे पब्लिक डीएनएस, वो ओवरऑल सिर्फ वो जो है मतलब इंटरनेट
के लिए वो रहेगा, वो डीएमजी में आप अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट दोनों का सर्व करना है, इंटरनेट और आपको लैन का, स्प्लिट डीएनएस सुना होगा आपने। तो जो स्प्लिट डीएनएस आप डिप्लॉय करते हो जिसमें एक ही डीएनएस होता है और मतलब उसके दो मतलब दो पार्ट होते हैं, मतलब एक इंसान का दो ब्रेन जैसे आप समझ लो, ठीक है। हाँ, एक हाँ, इंटरनेट के लिए सोचता है, एक प्राइवेट को सोचता है। हाँ, तो ये इन्फो ब्लॉक्स पे डिप्लॉय हो सकता है क्या वैसे स्प्लिट डीएनएस? हाँ, हो मतलब सकता है। हाँ, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरनेट व्यू डेटाबेस होगा हाँ, और इसमें आप कुछ जाएंगे अगर लेट्स से मैं जा रहा हूँ, लगे हाथ ही इंटरनल जा रहा हूँ। डेटाबेस भी होगा। ये डीएनएस है, ठीक है। डीएनएस में अभी डिफॉल्ट व्यू है। हम जैसे ही अगर हम कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम नया व्यू एक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डीएनएस व्यू के नाम से, ठीक है। हम इस पर नाम दे सकते हैं। अभी हम कहाँ हैं? हम डिफॉल्ट व्यू पे हैं, इसलिए डायरेक्ट इसमें एंटर कर रहा है। अगर हम एक व्यू और कॉन्फ़िगर कर देते, फॉर एग्जांपल एक व्यू आपके सामने मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, कर्मा ही डाल देता हूँ और कुछ नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे डीएनएस व्यू का क्या सेंस है? डीएनएस व्यू देखो, जैसे हम बीआरएफ कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे मैं लेमे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसे बीआरएफ कॉन्फ़िगर किया। डेटाबेस क्रिएट करना हुआ क्या? हाँ, एक सेपरेट डेटाबेस हाँ, ये जैसा पार्टीशन ऑफ मैं भी डीएनएस बोल रहा था। डेटाबेस। इसका सेपरेट डीएनएस डेटाबेस रहेगा, इसका सेपरेट डीएनएस डेटाबेस रहेगा। जैसे हम राउटर में बीआरएफ बनाते हैं या नेक्सस स्विचेस में बीडीसी बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट। आई गेस स्प्लिट डीएनएस शायद यही है क्या इसका इन्फो ब्लॉक्स पे? जहां तक मैं समझ रहा हूँ यही है। अपन और डिस्कस करेंगे, मैं उसको देख लूंगा स्प्लिट डीएनएस का पार्ट। इसमें और कोई ऐसा मेरे को फंडा अलग से मिला नहीं क्योंकि ये अब लॉन्च क्यों नहीं आ रही है इस पे? ये सीधे क्रैश हुई थी बस। शो लाइसेंस, लाइसेंस तो है। शो इंटरफेसेस, मैनेजमेंट पे बंदा 2 पड़ा हुआ है और इस पे 0.12 है। मे बी हमने इस पे कहीं 12 तो नहीं दे रखा। 3.11 0.12 इधर दे रखा है, इसलिए परेशान कर रहा है। ओके, इसको एक बार और चेंज करता हूँ। नेटवर्क मैं सीधे ही डाल देता हूँ, करता हूँ सेट नेटवर्क 192.168.3 डॉट। हमको क्या देना हमारे पीयर को? एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ। 3.12 इसको चाहिए, नोट टू लैन 1, ठीक है। अगर इधर देखोगे तो वही डाउन भी दिख रहा है, तो मैं इसको 3.12 करता हूँ। ओके, ग्रेट मेंबर, यस, ओके। अब ये ग्रेड वीआईपी बोल रहा है डालने के लिए, इसको मैं 3.11 डाल देता हूँ। ओके, ग्रेड नेम, सीक्रेट, ओके, सीक्रेट टेस्ट 1 2 3 4 5 6, मैं सीक्रेट डालता हूँ। ओके, enable grid services on management port, नो। और इसको मैं कॉन्फ़िगर, अब ये रीबूट होगा और रीबूट होने के बाद ये ज्वाइन करने के लिए अटेम्प्ट करेगा। देखिए, मीनवाइल हमारा जो ग्रिड मास्टर है वो ऑलरेडी अपने मेंबर को ढूंढ रहा है, मेरा पीयर है कहाँ। अगर आप वायर शार्क में देखोगे तो कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। इसको शायद दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ मैं, इसे वायर शार्क को ऑन करता हूँ।
ये अभी भी सर्च कर रहा है, ठीक है। ठीक है, उस तरफ जीयूआई में देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ समझ में आए शायद। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमारी तरफ से एक मिस्टेक है। ये लैन 1 को मेरे को इसको पलटाना पड़ेगा इस तरफ, तब चलेगा ये। ठीक है, एक बार फेल होगा फिर देखते हैं। ये लैन 2 तो जरूरत ही नहीं है, इसको मैं पहले ही हटा देता हूँ। और लैन 1 की इधर भी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। बस इसमें यही ड्रॉबैक है, थोड़ा सा टाइम लेता है। हेलो, हाँ चलेगी। अरे उसको केबल तो लगाओ। हम्म। एक मिनट विमल जी। हाँ, क्या 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 बोला? हाँ, नहीं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आने की। हम चाचा फिर से बोल रहे हैं, हमने चाचा से 30 तारीख को फोन किया था कि चाचा हम तेरहवीं में आ रहे हैं सिमौड़ी, आप बताओ आप लोग अवेलेबल हो तो मैं घर आ जाता हूँ। हाँ, तो पहले चाचा ने मना कर दिया कि अभी हम रहेंगे नहीं, हमें भोपाल जाना है। हम अपनी तरफ से नहीं है चाचा, देखिए 1000 किलोमीटर से आके इसी चीज के लिए भागूं मैं, ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं रह रहा कि कोई आदमी झोपड़ी में रह रहा है, एकदम बिल्कुल छत पे छता ही नहीं है। हमको भी टाइम दो, हम वहां से इतनी दूर से भागे भागे यार, और तुमको इतने अर्जेंट है तो सब लोग इधर आ जाओ, इधर बैठ के कर लो। भाई भले ही हम किराए के घर में रह रहे हैं, तो ये भी तो पूरे परिवार का घर है ना। हाँ, तो हमें ऐसी फीलिंग मत आने दो कि हम परदेसी हो गए या बिल्कुल बाहर कर दिया हमें घर से। ये क्या है, जानबूझ के हरकतें हो रही है, इनका पूछने का बनता है, ये पूछेंगे नहीं, मेरा ईगो हर्ट होगा, मैं कोर्ट चले जाऊंगा, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। तो बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये बार बार मेरे बिल्कुल मेरे अंदर तक हर्ट कर रहा है मेरे को, ये दोनों पति पत्नी। नहीं मतलब देखो, तुम्हारा साला मारने के लिए बोल रहा है तो तुम्हें भाई दिख गया वहां पे। ठीक है, यहाँ मंदिर में चैत्यालय की बेदी चाहिए तो तुमने भाई को फोन कर लिया। तो तुम जब घर पे काम लगा रहे तुम्हें भाई नहीं याद आया वहां पे?
नहीं तो चाचा आपको लग क्या रहा है, वो क्या चाह रहे हैं? कितने पैकेट लाया? हाँ? मैं 3 पैकेट लाया हूँ। क्यों? 300 वाले को निकाला है। नहीं तो तुमको इतना अर्जेंट है, ऐसा है ऐसा तो है ना कि आप तुम हमसे बात नहीं करना चाह रहे हो, काम लगाना है तुमको, तुम हमसे बात नहीं करना चाह रहे, तो तुम जाके जुर्माने उठा लोगे, हम भैया से जीवन भर बातें नहीं करेंगे कभी। फिर अगर ऐसा है तो ऐसा करो फिर। अब भी जैसे बैठेंगे हम, बैठक लगेगी तो बातचीत नहीं होगी फिर। एक बात बताओ, इसका अगर केबल भी निकल गया तो ये रिबूट कर लेता है क्या खुद को? हम्म हम्म हम्म। हाँ चले जाओ कहना, चले जाओ, चले जाओ, तुम हमको धमकी मत दो, तुम चले जाओ, तुम्हें जाना म्यूट है में बोल रहे हो क्या? एक मिनट विमल जी, एक फोन पे हो जाता जब तक ये आप आ जाए। अच्छा। हम्म 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 नहीं, हम चाहते यही लगाने के लिए बता रहे थे कि अगर मामला बिगड़ गया तो बदनामी तो होगी ही बहुत तेजी से, टोरी और तारादेवी जैसी बहुत बदनामी होगी। दूसरी बात यह है कि क्या नाम से इतना भिड़ेगा, अभी अभी क्या है, आप लोग का 5 लोगों का बंटवारा नहीं, वो पहले वो बंटवारा बनेगा, ठीक है। इसमें फिर शुभम लोग ही पिक्चर में आएंगे, फिर उनका बंटवारा, फिर जब तक पूरा फाइनल जब मोहर नहीं लग जाएगी, तो जब तक पता नहीं साल भर लग रहा है कि 2 साल लग रहा है, फिर कर लेना तुम बंटवारा अच्छे से और बनवा लेना। चाचा देखिए, कागज पे तो नहीं है ना, कहाँ हुआ अभी, कहाँ बंटवारा नामा कहाँ बना अपना? हाँ, तो अब हमने स्टे लगा दिया ना, तो फिर सब बंटवारा नामा बनता रहेगा फिर कई सालों तक, आप समझ नहीं रहे बात को मेरी। सबका यही बनना। हम्म 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 सेशन चला देना। ठीक है चाचा, मेरी कॉल चल रही है, आप काम तभी करने करवाने दीजिएगा, आप हैं वहां पे, मेरे को पूरा भरोसा है, आप काम तभी करने दीजिएगा तब जब मैं आ जाऊं, जब तक आप रोक के रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ जितने जल्दी आ सकूं मैं आता हूँ। ठीक है चाचा।
अरे सॉरी, एक्चुअली घर से कॉल आ गया था मेरे अंकल का। तो अभी आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें सेट मेंबरशिप कमांड दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेट मेंबरशिप कमांड दिया तो इसने बोला कि आपको मेंबरशिप तो बनाना है तो बीआईपी की डिटेल दो। तो मैंने इसको वर्चुअल आईपी एड्रेस दिया बीआरआरपी का। फिर इसने ग्रिड नेम पूछा, ग्रिड नेम दे दिया। ग्रिड नेम देने के बाद इसको शेयर सीक्रेट दिया, शेयर सीक्रेट दे दिया। शेयर सीक्रेट देने के बाद 1 मिनट में इसको स्टॉप कर दूं जरा सा, फिर आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये बूट हुआ, बूट होने के बाद इसने इनिशियलाइजेशन के बाद अपना ग्रिड मास्टर ढूंढना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद जब इसको मिल गया तो मिलने के बाद इसने उसको अथेंटिकेट किया। अगर इस स्टेप पे, इस वाले टाइम स्टैम्प पे अगर ये अथेंटिकेशन फेल होता तो ज्वाइंट फेलियर मैसेज आता और आपको यहाँ पे भी एरर दिखती, अथेंटिकेशन फेलियर मैसेज आता यहाँ पे, ठीक है। इसके सामने अथेंटिकेशन फेलियर मैसेज आने के बाद ये नोट फिर से रीस्टार्ट होता और नॉर्मली रीस्टार्ट होके वापस अप आ जाता। अगर आपको फिर से उस पर सेट मेंबरशिप कमांड चलाना है तो आप दोबारा चला सकते हो। तो फिर से अगेन वही प्रोसेस होगी, जो ये पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अनदर थिंग, इसके बाद ये कहाँ गया, इनिशियलाइज किया पहले, ये कॉन्टेक्ट हो गया, इसका कॉन्टेक्टिंग ग्रिड मास्टर कॉन्टेक्ट हो गया। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज मोड में चला गया। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद फिर ये फिर से री इनिशियलाइज कर रहा है। तो इनिशियलाइज फिर दोबारा इनिशियलाइज क्यों कर रहा है? एक बार इसने इनिशियलाइज कर लिया, फिर ये दोबारा फिर से इनिशियलाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम एज ए ग्रिड स्टैंड अलोन ग्रिड, इसने एज ए स्टैंड अलोन मेंबर इसने अपने आप को इनिशियलाइज किया, ओके। उसके बाद फिर इसको इसको कमांड मिली थी, उस कमांड को इसने फॉलो किया तो अपना ग्रिड मास्टर ढूंढा। फिर अथेंटिकेशन हुआ, अथेंटिकेशन होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज मोड में फिर से चला गया। तो ये वापस जब इसका डेटाबेस बिल्ड होके वापस ये आया इंटरनली चल रहा है इसका प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो जब ये वापस आया तो वापस फिर से ये इनिशियलाइज किया इसने। कैसे किया इनिशियलाइज? इसने जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था अपने पीयर से लिया कि एचए का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरे पीयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पीयर का जो लैन 1 नोड है उसका 3.11 आईपी था पहले, अभी क्या है, वो सारा लेके इसने अपने आप में सेट कर लिया पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद इसने फिर से कांटेक्ट किया ग्रिड मास्टर से, ओके। फिर से ऑथेंटिकेट करने के बाद डेटाबेस को सिंक्रोनाइज किया, ठीक है। दोबारा क्यों किया इसने? तीसरी बार सिंक्रोनाइज क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि विद इन दिस टाइम अगर ग्रिड मास्टर से कोई डीएनएस क्वेरी आई या कोई लॉक्स जनरेट हुआ या कोई डीएससीपी लीज बन गई या किसी एडमिन ने कोई ए रिकॉर्ड सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, तो ये आपस में फिर से सिंक्रोनाइज करता रहेगा। किससे? अपने ग्रिड मास्टर से, ठीक है। तो ये क्या बन गया अब आपका ग्रिड मास्टर कैंडिडेट, ओके। फिर इसके बाद इसने फिर से इनिशियलाइज किया दोबारा से। अब ये रेडी हो गया पूरा। रेडी होने के बाद ये अपने आप की जितनी सर्विसेज हैं वो पूरी बूट करेगा। सर्विसेज मतलब जीयूआई सर्विस, और जितनी सर्विसेज इनेबल है लाइक डीएनएस सर्वर, लाइक डीएचसीपी सर्विस, ये सारी इनेबल करेगा जो जो भी इसमें लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो सिमिलरली ये एक्टिव हो गया और ये 3.12 जो हमने ऐड किया है ये पैसिव हो गया। बट हम जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करते हैं, एक्टिव को हम बोलते हैं ग्रिड मास्टर और इसको बोलते हैं ग्रिड मास्टर कैंडिडेट, राइट। और ये हमारी ग्रिड हो गई HOA karmaritas.com। हमारी ग्रिड का नाम क्या है? ये हो गया। हमारे HA पेयर का नाम क्या है? ये है, ठीक है। ये रेड क्यों आ रहा है? मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, इस पेज को भी रिफ्रेश मारता हूँ। आई थिंक ये ग्रीन हो जाना चाहिए, ये ग्रीन हो गई। पहले रेड इसलिए आ रहा था कि एक इसका कैंडिडेट डाउन चल रहा है, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं। ये है, ये यहाँ तक ढूंढ रहा था इसको। जब यहाँ से ढूंढने के बाद इसको ये मिल गया तो आप देखो पैकेट्स चेंज हो गए आपके, और पैकेट चेंज होने के बाद ये गेटवे पे गया, ये तो OSPF का हो गया, ये UDP का आया। अब जब UDP का हम पैकेट देखते हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। ये UDP 1194 होगा? हाँ, 1194 पे ऑथेंटिकेट करेगा ये। नहीं, बट यहाँ पे 1194 वाला पैकेट है, मतलब मैं देख देख रहा हूँ, रहा हूँ। देख रहा हूँ। 1194 पे ऑथेंटिकेट करेगा ये। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं। ये यहाँ तक ढूंढ रहा था इसको। जब यहाँ से ढूंढने के बाद इसको ये मिल गया तो आप देखो पैकेट्स चेंज हो गए आपके, और पैकेट चेंज होने के बाद ये तो वो SPF का हो गया, ये UDP का आया। अब जब UDP का हम पैकेट देखते हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है।
यहाँ पे तो यूडीपी प्रोटोकॉल 17 दिख रहा है, अगले में देखते हैं। ये 18 है, ये प्रोटोकॉल BRRP 112 चल रहा है, ठीक है, ये तो BRRP का हो गया। अब आना चाहिए, यहाँ कहीं मिलना चाहिए, लेकिन विमल क्या जी क्या देखना चाह रहे हो? विमल जी, इसका जो प्रोटोकॉल है 1194 1194 और 2114। यूडीपी का? हाँ, तो वहाँ फिल्टर मारो ना ऊपर में, यूडीपी फिल्टर मारो, सिर्फ यूडीपी का ट्रांजेक्शन देखो। ये भी सही है। अगर हम इस पे देखें तो इसमें नहीं। यही तो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है ना, 3.30 3.12 का, इसी में मिलेगा ना हमको। यहाँ सामने तो दिख रहा है ना, उतना क्यों उसको कर रहे हो? पोर्ट जो है यूडीपी के सामने मेंशन रहता है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन में अभी नहीं दिखा रहा है, बात का देखो। कहाँ फिल्टर मारे हो? सारा तो दिख ही रहा है। देखिए यूडीपी का अच्छे फिल्टर मारो, पोर्ट तो यूडीपी का है ना। हाँ, 2194 है, 211। अरे नहीं, वो नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, सिर्फ यूडीपी का मारो। यूडीपी तो है ना यार, मैंने मारा हुआ था ऑलरेडी। आई थिंक आपको लिखना पड़ेगा प्रोटोकॉल एज यूडीपी, ऐसे यूडीपी में वो रेड रेड बार में आ रहा है। अगर इसको यूडीपी 1194 है ना, अरे वो छोटा मारो नहीं, ना। ऐसे ऐसे नहीं, टीसीपी से आता है ना, टीसीपी डॉट प्रोटोकॉल इक्वल टू। स्मॉल मारो ना यूडीपी, हाँ मारो, एंटर मारो। हाँ, ये देखो आया। अब इसमें देखो, ये भी 17 है, 17। यूडीपी का लास्ट ट्रांजेक्शन देखो। ये लास्ट है। इसमें कौन सा दिखा रहा है? तो अभी कहाँ नहीं कम्युनिकेट हुआ उससे? जरा पोर्ट नंबर एक बार रिकॉल करना, वो जो दो पोर्ट है यूडीपी का, वो कब यूज होता है? आई थिंक अगर आप टॉप बार में यूडीपी डॉट पोर्ट लिख के देखना आता है, यूडीपी डॉट पोर्ट, पोर्ट PORT पोर्ट, हाँ, इक्वल टू यहाँ पे 1194। पहले 17 लिख के देख लो एक बार, वो सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। 17 लिख के सही एंटर मारा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। यूडीपी वो जो है 17 पोर्ट नहीं है, वो प्रोटोकॉल नंबर है, वो आईपी हेडर के अंदर आता है। इक्वल टू, आप जो ढूंढ रहे हो ना, वो रेंज पे फोकस करो। यूडीपी पोर्ट नंबर कितना था? दो दो पोर्ट बताया था ना। हाँ, कौन कौन सा था? 11। 1194 2114। हाँ, तो ये 1194 कब यूज होता है? जब ऑथेंटिकेशन होता है। की एक्सचेंज। हाँ, तो ऑथेंटिकेशन का ये, एक काम करो, उसको इंटरफेस को बाउंस कर सकते हो क्या? कैसा क्लियर कर दें? यूडीपी को रहने दो। अरे यूडीपी वो फिल्टर मत करो, बस नहीं, इसको हटाओ, नहीं, फिल्टर रहने दो। उसको इंटरफेस को बाउंस कर सकते हो क्या, जिसपे ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन होता है? हाँ, बाउंस क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो बाउंस करो तो फिर से आएगा वो, फिर देखो फ्रेश ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम यहाँ से बाउंस करते हैं। तो भी कम्युनिकेट कर रहा है ये।
इसको गेट पे मिल रहा है लग रहा है। मैनेजमेंट को डाउन किया हो क्या? नहीं नहीं, इसी को डाउन किया, 3 डॉट को विलेन का डाउन कर दिया सीधे। लेकिन अगर यहाँ से मैं हटाता हूँ, ये स्विच पे जाके मारो ना, वो तो वो ये स्विच गेटवे नहीं है, का स्विच नहीं है, हब है। अब है हाँ, क्या है इतना आलस बात है, लगाना था ना स्विच। अब लगा के देखूंगा अगली बार। चल नहीं रहा था तो मैंने कुछ ना कुछ अक्कड़ बक्कड़ करते जा रहा था तो मैं। वो गेटवे को मारेगा तो हेलो, गेटवे सॉरी आई का एम तो हो ड्रॉपिंग जाएगा। नाउ, मैं वीडियो बाद में देख लूंगा, आई नीड ठीक टू गो। ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, ओके, थैंक यू, बाय। बाय बाय, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ वो गेटवे को क्यों मारे शट डाउन, गेटवे पे थोड़ी ना जाएगा, इनका जो ऑथेंटिकेशन जो होना है वो L2 पाथ पकड़ के जाएगा वो। हाँ, तो वो L2 पाथ पकड़ के चला जा रहा ना हब में से। हाँ तो ये हब का उसको डाउन कैसे करोगे? तो बस डिवाइस डाउन करना पड़ेगी मेरे को। हाँ तो डिवाइस डाउन कर दो थोड़ी देर के लिए। तो ये वाली डिवाइस डाउन कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको नो शट कर दूंगा। रीसेट मत मारो, फिर से करना पड़ेगा सब। मार देता हूँ। मैं देख रहा था टेंशन कितना मिल रहा है उस पे। ठीक है, अब बायर शार्क में चलते हैं, ये रिबूट होके वापस आएगा। यहाँ पे क्या देखना हमको अब? नहीं रिबूट नहीं करना था ना, स्विच को करना था, स्विच बोल रहा है आपको, उसको जो है रिबूट करना था। यहाँ पे रिबूट नहीं होगा ना, यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तो डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करूंगा तो दोनों इंटरफेस चले जाएंगे इसके, फिर दोनों को मेरे को शट डाउन करके नए नए सिरे से इंटरफेस लगाना पड़ेंगे। आगे खैर से अब, ना उसका स्विच लगाना भाई। अरे मैं हटा दूंगा इसको, अब फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो अब मैं हटा दूंगा इसको, तो उसकी जगह कुछ और लगा दूंगा। अभी वाइट शार्क चालू रखो, जैसे ही आप आएगा तो हाँ, ये बूट होना स्टार्ट हो गई, समझ लीजिए। अब मैं बायर शार्क में जाता हूँ। इधर क्या देखना है हमको? यूडीपी देखना बस। सिर्फ यूडीपी एंटर मारो। तो लास्ट का कितना है? 1581 है। नहीं लास्ट यूडीपी पैकेट कौन सा है? 1501। 1501 ठीक है, उसके बाद का देखना। अभी जैसे अभी आप नहीं आए, आप आएगा तो यूडीपी का ट्रांजेक्शन होगा, वहां देखना उसका ऑथेंटिकेशन। मैं नोट कर लेता हूँ इसका। ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा कोड बोले थे? यूडीपी 1194। 1194। और दूसरा जो है वो कौन सा है? 2114। 2114, ये किस लिए? ये डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, डेटा पास के लिए। तो ये तो ऑथेंटिकेशन के बाद का सीन है। यार इसमें आया क्यों नहीं लेकिन ट्रांजेक्शन इसका? हाँ ये तो बूट होके आप होके आ गया वापस। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये वापस आ चुका होगा अभी तक। ये वापस आ गया, बट 2114 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कुछ। नहीं हम लोग तो लास्ट टाइम देखे थे ना, ये BRRP चेक करो तो। ऐसा तो नहीं है स्टॉप हो गया हो सेशन इसका, बायर शार्क का? ना चालू करके देखो, नहीं इसको क्रॉस करके दोबारा चालू कर लो, क्या दिक्कत है? ये वायर शार्क को बंद करो, फिर चालू कर लो। अच्छा से अब हम ये यूडीपी देखते हैं, तो इसमें हमको मिलना चाहिए ना 2114, तो देखना चाहिए ना जब डेटाबेस एक्सचेंज हो रहा है तो। वो तो ऊपर ही दिख जाएगा, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, सामने में लिखा है ना सोर्स कोड डेस्टिनेशन कोड, डेस्टिनेशन में दिख जाता है।
नहीं तो इसमें तो सिर्फ आईपी दिखा रहा ना हर बार। नहीं, आईपी कहाँ आईपी दिखा रहा है हर बार, यूडीपी भी है ना, ठीक है। सिर्फ यूडीपी का ट्रांजेक्शन देखो तो उसमें दिखेगा। यहाँ पे जो है बहुत सारे ट्रैफिक दिख रहा है। सबसे लेटेस्ट देखो, जो लास्ट पैकेट है, ये 802 किस लिए यूज कर रहा है? मैंने देखा था कहीं दिखाई देता है, 2114 दिखता है, बराबर नहीं दिखता है पूरा। अरे सुनो, यूडीपी का यूडीपी में दिखेगा, अगर यूडीपी ट्रैफिक है यूडीपी में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। ये 802 कौन सा पोर्ट है? 802 का नहीं आइडिया, देखना पड़ेगा ये। तो ये यूडीपी किसका दिख रहा है? ये देखो 3.13, सोर्स भी 3.13 है, डेस्टिनेशन भी 3.13, डेस्टिनेशन 3.12 है। 12 तो 13 12 से कम्युनिकेट कर रहा है यूडीपी के ऊपर, और पोर्ट है 802। हाँ, तो ये दोनों के जो ये इंटरफेस है ना लैन वन दोनों डिवाइसेस के, उसके थ्रू ये इसका आई थिंक इसके ये हार्टबीट मैसेजेस चल रहे हैं इस पे। एक बार चेक करता हूँ। ट्वेंटी बाइट का पेलोड दिखा रहा है इसमें बस, तो ये तो हार्टबीट मैसेज ही हुआ ना। एक मिनट, यही है यूडीपी पोर्ट 802 is generally associated with the legacy authentication service protocol. अच्छा, UDP, if you encounter traffic on UDP port 802 related to infoblogs, it is likely used for ठीक है। define statistics. हेलो विमन, हाँ, मुझे खुद भी तो खा सकते थे, विमन। कितना काम कर रही है। ठीक हाँ, है, तो बोलिए बोलिए राजेश जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये अभी कितनी देर और चलाओगे आप बस क्लास? हो गया लास्ट है ये, ग्रेड मेंबर और ज्वाइन करा दूं, फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे आगे, इसके आगे नेक्स्ट वीक में करेंगे ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5-7 मिनट और लगेगा आई थिंक। एक मिनट, वो जो वायरशॉप को ओपन करना, हाँ, उसका मैंने पेलोड ठीक है, ठीक है, ग्रेड ठीक है। मेंबर को ऑन किया है, ठीक है, मीनवाइल वायर शार्क भी ओपन कर दे रहा हूँ। इसका डेटा है यूडीपी। ये ऑथेंटिकेशन का तो बोल तो रहा है कि यही ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये लेगेसी है। पता नहीं है मतलब ये कैसे चल रहा है, देखना पड़ेगा बट ये नेट स्टेट चलता है क्या इस पे? CLI में, ये इन्फोब्लॉक्स पे। हाँ CLI में ना, हाँ हाँ, हाँ चलेगा। देखो तो नेट स्टेट मार्केट। देखो, जो यूडीपी 1194 ढूंढ रहे हो ना, लो, नहीं इसमें कमांड नहीं दे रहा। तो हाँ। कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ यूडीपी 1194 जो ढूंढ रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, वो यूडीपी 1194 वीपीएन टनल्स के लिए यूज होता है ग्रिड में। हाँ, तो टनल्स बना है, टनल्स बनेगा तब वो 1194 का दिखेगा। अभी क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनो, VPN टनल्स इन अ ग्रिड यूज यूडीपी पोर्ट 1194 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और 802 जो दिख रहे हैं, if you encounter traffic on UDP port 802 related to infoblogs, so it is likely used for a user-defined static source port for queries or notified message if explicitly configured in the DNS port setting within the infoblogs. A custom application or integration as Infoblox doesn't preserve this port of its core DDI,
and a third party application or service running on the same network that is using the port. So you can use network tools like NetSC to determine the exact service process based on port 802 specific host. अभी ये VPN टनल बना नहीं है, VPN टनल एस्टैब्लिश होगा तो 1194 दिखेगा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि VPN टनल तो नहीं बना है, लेकिन अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, सिसलॉग मैसेज देख रहे हैं, तो ये VPN तो दिखा रहा है ना इसमें। हाँ? कौन सा? ये देखिए ना सिसलॉग में डेमन में नोटिस दे रहा है, ठीक है, ये VPN नोड है और इसमें 1194 के थ्रू ही ये पोस्ट चल रहा है इसका, सेंड पोस्ट रिप्लाई। तो VPN टनल का ट्रांजैक्शन तो उसमें दिखाएगा वो। अब इसको देखना पड़ेगा, एक बार रिसर्च करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको आगे बढ़े, इसको कंप्लीट कर लें हम लोग। हाँ कर लो। अभी इसमें क्या हुआ कि पहले ये इसी ग्रिड से ज्वाइन था लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। अब हमको क्या है, डोमेन तो वही है हमारा और सिर्फ इसका होस्ट नेम चेंज है, ब्रांच ऑफिस नाम है इसका, और इसका आईपी है 172.16.4.2, ठीक है। तो इसका ये जरूरी नहीं कि आपका ग्रिड मेंबर उसी सेम VLAN में हो, सेम आईपी एड्रेस स्कीमा हो, क्योंकि जो हमारा इन्फोब्लॉक सेटअप है, जैसे हम मल्टीपल साइट्स पे मल्टीपल राउटर्स होस्ट कर सकते हैं, वैसे ही अक्रॉस द ग्लोब हम कहीं भी इन्फोब्लॉक्स एप्लायंसेस होस्ट कर सकते हैं और वी कैन कम्युनिकेट between multiple Infoblox appliances, either virtual, either physical, over the public IP address or private both, based on the reachability. Okay, so right now अभी आपको एक मैं बताता हूँ, ग्रिड है हमारी, इस ग्रिड में वी नीड टू ऐड द ग्रिड मेंबर, ठीक है। अभी तो हमने ग्रिड मास्टर का HA कॉन्फ़िगरेशन किया, वो पूरा का पूरा हमने ये ग्रिड का नाम चेंज किया, ग्रिड का नाम चेंज अच्छा, करने के बाद यहाँ थोड़ा और रोक रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने ना HA नहीं किया था, हाँ स्टैंडअलोन में हमने ये ग्रिड और मेंबर के बीच जो VPN टनल बना था उसका ट्रांजैक्शन हमने देखा था, जिसमें UDP पोर्ट 1194 दिखा था। अभी क्या है, इसमें नहीं दिख रहा है हमको ग्रिड मास्टर और कैंडिडेट। हम लोग HA देख रहे हैं इसका, तो HA में वो VPN टनल कहाँ आएगा सीन में? ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ, ये आपकी बात भी सही है, लेकिन ये देखना है कि HA के बीच में भी तो डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन होता है और VPN टनल बनता है, क्योंकि HA भी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी अप्लायंस दोनों भी डिफरेंट डेटा सेंटर्स पे भी होस्ट होती है ना, एक ही जगह तो होस्ट होती नहीं है। HA के बीच में VPN टनल बनाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं, तो उनका फिर ये HA अगर आप का इसमें देखोगे, लिंक है। विमल जी इसमें HA देखोगे हाँ, तो इसमें VPN नोड क्यों दिखा रहा फिर ये? अब ये देखना पड़ेगा कि ये उनका जो ओपन VPN यूज करता है, ये ओपन VPN यूज कर रहा है, मास्टर से जा रहा है ये, ठीक है, और ये 3.12 को जा रहा है, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें कि ये इस अपने पीआर को भेज रहा है। कौन भेज रहा है? ग्रिड मास्टर। ग्रिड मास्टर का आईपी क्या है? वो तो VIP पे चल रहा है 3.11। हाँ देखो, एज पर वायरसाक ट्रैफिक वहां पे सिर्फ 802 बता रहा है। 802 जो है वो इनका ऑथेंटिकेशन है, हाँ, पीआर के बीच में वो बोल भी रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो हम 1194 को देखना चाह रहे हैं ना, वो है VPN टनल का। तो अब VPN टनल HA के बीच में नहीं आएगा, वो क्लाइंट और यार क्लाइंट नहीं ना है, दोनों जो है, एक ग्रिड मास्टर है, एक कैंडिडेट है, बिल्कुल, लेकिन क्लाइंट जहाँ होगा, क्लाइंट और मास्टर के बीच में जो VPN टनल एस्टैब्लिश होगा ना, वहां पे UDP ट्रैफिक को पोर्ट पे जाएगा 1194। ठीक है। अब आगे क्या है? इसको बाद में करेंगे, ये आप इसको क्लोज करो जो आगे करके। अच्छा जैन साहब, मैं ना ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, और थोड़ा और रह गया है, ग्रिड मास्टर में ग्रिड मेंबर ऐड कराना है, तो वो लास्ट टाइम आपने देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से करना है क्योंकि ये फ्रेश सेटअप है पूरा। हाँ कोई नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ा ऑफिस का काम है, ठीक है, ठीक वी है, ऑफ डिप्लॉय करना है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब मेरे को अभी मेरा एक अप्लायंस यहाँ पे था स्टैंड अलोन, उस पे उसका पीयर डालना था, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके और नेटवर्क सेटिंग को मॉडिफाई किया, BRRP कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद इसको रिबूट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया HA पेयर में। बट हमें जब भी अच्छा, अब फिर ये कन्वर्ट आपने यहाँ से तो कर दिया,
लेकिन इसका जो पेयर है मतलब एच ए पेयर, इस एच ए पेयर को हमने बताया कि तुमको वहां से सेट मेंबरशिप कमांड देके इंफॉर्मेशन दी, ऑथेंटिकेट किया और ये कन्वर्ट कर दिया, वो भी फिर ज्वाइन हो गया इससे और ये एक बंडल बन गया एच ए पेयर का। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मेरे को एक ग्रिड मेंबर ऐड कराना है, ग्रिड मेंबर ज्वाइन करेगा हमारा BIP पे, ठीक है 3.11 पे। अब उसकी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है अगर हम यहाँ पे करें तो आई डोंट थिंक यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से हम कर सकते हैं। आइदर ये प्लस पे आप क्लिक करो, आप ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी एंट्री आप इसको मॉडिफाई करके आप इसमें ग्रिड मेंबर ज्वाइन कराओ, नहीं, आपको यहाँ पे ऐड कराना है। तो ऐड कराने का दो तरीका है, या तो यहाँ पे आके ऐड कराओ ग्रिड मेंबर को, या आपको डायरेक्ट पता है तो आप सीधे यहाँ से ऐड कराओ। ठीक है, हर चीज टूल बार में। अब इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, इसमें दे रहा है इन्फो ब्लॉक्स और वर्चुअल NIOS। इन्फो ब्लॉक्स मतलब फिजिकल बॉक्स और वर्चुअल NIOS मतलब वर्चुअल मशीन। ओके, इसका होस्ट नेम मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें जो पड़ा है वही दे देता हूँ, ब्रांच ऑफिस, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी हमको इसका। ठीक है, और इसको मैं ऐड करा देता हूँ, सिंपल है इसमें और कुछ नहीं। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा जो पेयर है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैच है, यहाँ पे भी चल रहा मेरा एच, कोई क्रिटिकल साइट है तो उस कंडीशन में हम यहाँ भी एच बना सकते हैं। तो अभी तो हम नहीं बना रहे हैं, बाद में लेटेस्ट सी। तो इस पे मैं IPv4 यूज कर रहा हूँ, IPv4 V6 कुछ नहीं कर रहा हूँ, IPv4 यूज कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। ये मेंबर किसको बना रहे हो, जो पहले कैंडिडेट था? हाँ ये इसको मेंबर बना रहा है, इस पे ग्रिड पे ज्वाइन कराया दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसको स्टैंड अलोन मेंबर बोल के इसको ऐड करा रहे हैं। अब इसका IP एड्रेस देंगे, ये हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर रहे हैं, ग्रिड में। तो आप इस पे खोल के रख लीजिए, क्या है भैया आपका IP एड्रेस, इसका IP एड्रेस है 4.2, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल है। ठीक है 255.255.255.0। ओके, गेट में क्या है इसका 1, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इधर मैंने सेव कर दिया, सिंपल है, ऑफलाइन बता रहा है। ठीक है, अब मैं इधर जाता हूँ और इसको बोलता हूँ तो कर दिए। ठीक है, परेशान हो गया वो। ठीक है, इधर बोलता हूँ सेट मेंबरशिप। ओके, अच्छा ये कह रहा है कि मैं पहले से ही मास्टर हूँ। ओके, ये जो हमारा रीबूट हुआ था ना, उस वजह से प्रॉब्लम हुआ है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, रीसेट डेटाबेस। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। डेटाबेस रीसेट मार दिया, क्योंकि वो पहले क्रैश हो गया था ना, पूरी लैब डाउन हो गई मेरी। वो तो किस्मत थी कि वापस आ गया, तो ये भी NG बैठ जाता तो दिक्कत हो जाती है आज। इसमें VPN टनल दिखेगा, देखना चाहिए, अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्या नाम से हमारा हो जाए जरा सा, क्योंकि जैसे ही हम सेट मेंबरशिप कमांड देंगे यहाँ दिखेगा ये। तो जब तक ये क्या नाम से रीबूट हो रहा है, जब तक रीसेट करके रीबूट होगा, मैं जब तक आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी जो लास्ट वीक था, मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था मैंने इसको विंडोज सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, इस पे कॉन्फ़िगर करके इस पे karmareturns.com डोमेन कॉन्फ़िगर कर दिया था। ठीक है, और इस क्लाइंट को इसकी रीचेबिलिटी पूरी नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करके इस क्लाइंट को, विंडोज क्लाइंट को इस पे ज्वाइन कर दिया। अब AD यूजर मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में मैं जो भी यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन यूजर से ये हमारा विंडोज क्लाइंट कैन लॉग इन थ्रू द डोमेन। ओके, सो ये डोमेन लॉग इन कर पा रहा है, ऑथेंटिकेशन हो गया था। सेकंड, ये जो सिस्टम है ये इस DHCP सर्वर से DHCP IP उठाएगा। ठीक है। ठीक है, थर्ड गोल ये था कि ये हमारा एक स्मॉल VPC क्लाइंट है, तो ये क्लाइंट, इसमें से हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड में से सपोज एक ही अप्लायंस को मैंने बोला है कि तुम DHCP सर्विसेज दो, तो इसको असाइन किया था, तो ये यहाँ से DHCP उठा रहा था। अभी इतना गोल था, तो हम ये जितना अभी मैंने बताया है, ये ब्रीफ किया, ये वाला अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बाकी का यहाँ तक का हमारा सेटअप रेडी हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या है,
हमारी ग्रिड हो गई रेडी। ग्रिड रेडी होने के बाद हम पहले DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। DHCP कॉन्फ़िगर करने के बाद DHCP फेलोवर एसोसिएशन कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर इसके बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे इसमें कि हम अपना जो इन्फोब्लॉक्स अप्लायंसेस है इसको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं बाहर से। अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ 0.12 को। इसको मैं कैसे लॉगिन करता हूँ, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम दिया हुआ है उस पर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। लेकिन बाद में मैंने सपोज एक यूजर बनाया है skj@karmareturns.com लाइक दैट, और उसका पासवर्ड जो यूजर डेटाबेस उधर मैंने डाला हुआ है उधर सेट है जो पासवर्ड, उससे इसको ऑथेंटिकेट करा के लॉगिन करना है ग्रुड को। तो वो करेंगे नेक्स्ट। और अपन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, डिस्कस करेंगे कि हम जैसे 10 यूजर बना रहे हैं उसमें से 2 यूजर को हम सिर्फ DHCP एडमिन बनाना चाहते हैं, दैट कैन बी डू। 4 यूजर को सिर्फ DNS एडमिन बनाना चाहते हैं, वो भी करके देखेंगे। ठीक है, कुछ 2-3 यूजर है उनको सिर्फ पर्टिकुलर नेटवर्क पे ही एक्सेस देना है, वो नेटवर्क को ही केवल मैनेज कर सकें, वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारी डिवाइस वापस आई हो तो देखते हैं, आ गई है। शो नेटवर्क, ओके। नेटवर्क का IP हमारा वही है। शो इंटरफेसेस देख लेते हैं। ठीक है, इंटरफेसेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही IP है हमारा 4.2। ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ सेट मेंबरशिप, अभी हो जाएगा। तो मैं IP दूंगा, कौन सा IP दूंगा, 192.168.3.11। ओके, ग्रिड नेम, ग्रिड नेम तो हमारा ये है, इतना प्यारा सा नाम दिया है, तो इसको ले लेते हैं हम। सेशन एक्सपायर हो गया। HOA है या वो उसका डोमेन नेम दे रहे हो, FQDN दे रहे हो ना? हाँ, ये तो एक मोटा मोटी लैंग्वेज में समझ लीजिए फॉरेस्ट नेम है। हाँ, ये फॉरेस्ट नेम हुआ, लेकिन ये जो है HOA ये तो FQDN है, तो FQDN दोगे या फॉरेस्ट नेम दोगे? फॉरेस्ट नेम, ग्रिड का नाम दे रहा हूँ मैं, ग्रिड का नाम है ये तो हमारा मास्टर कैंडिडेट है। किसमें है मास्टर कैंडिडेट, ग्रिड में है। ठीक है। अब लेटर पार्ट अगर ये मास्टर है हमारा, ये क्रैश हो गया तो ये ग्रिड की प्रॉपर्टीज कौन होल्ड करेगी, ये हमने कल को ज्वाइन किया, दूसरा आ गया रिप्लेस होके RM में, तो दोनों ही बेयर करने लगेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को। तो अभी मैं इसको दूंगा इसमें। ठीक है, सीक्रेट क्या है, TEST12345 ओके, करेक्ट करेक्ट। देखो वैसा ओपन करो, हाँ, अब करता हूँ। UDP ट्रैफिक रन फिल्टर। अभी ये लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, हाँ, लास्ट आया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। 79 बढ़ कैसे रहा है जब ये अभी रिबूटिंग प्रोसीजर में है? अरे तो उन दोनों के बीच में तो चल रहा होगा, उनको कौन रोक लेगा। अरे एक गया कोड स्टेट में, ग्रिड तो मास्टर और उसमें कैंडिडेट के बीच में चल रहा है सिंक्रोनाइजेशन, 13 और 12 के बीच में। अच्छा वो सॉरी, देखिए ये हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, हमें पता ही नहीं चला, ये ज्वाइन हुआ जा रहा है। ये मेंबर का क्या आईपी है? वही तो कुछ समझ में नहीं आया, दिखाई थी वो 172 3.11 नहीं 16 ये तो नहीं, है 172 1642। 172 16 का देखो, कोई फ्लो अभी तक आया नहीं है क्योंकि अब ये रिबूटिंग में है। नहीं, ये हो गया, काम हो गया इधर तो लग रहा है, नहीं उसका कोई फ्लो नहीं आया ना अभी तक। लेकिन ये तो यहाँ आप हो गया जी। हाँ अब हो गया, लेकिन उसका फ्लो नहीं आया अभी ना। तो आएगा क्या इसमें, आपको क्या लग रहा है, इतनी देर तक रह जाएगा। एक मिनट, आप ना गलत जगह ये वॉइस ऐप खोले हो, इसलिए नहीं हम नहीं देख रहे हैं। इधर आओ, इसको बंद करके टोपोलॉजी में आओ। हाँ यहाँ पे आप लो कैप्चर। कहाँ पे, इस पे ले लूं क्या, नहीं नहीं, ये जो ग्रिड मेंबर है ना, यहाँ। अरे यहाँ 4.2, हाँ यहाँ पे देखो ना, इसका लाइन का कैप्चर करो। अरे अपन तो यही सोच रहे थे कि ये ईमानदारी से उधरी का बता देगा। फिर देख लो यूडीपी आ रहा है, और ओपन व्यू 4.2 से 3. ओपन वीपीएन करो। हाँ ये यही है करना, ओपन वीपीएन वो है ना ऊपर में 3.11। हाँ
अरे वही क्लिक कर दो ना, कोई कोई भी भी हुआ, ओपन वीपीएन कोई भी क्लिक कर दो। ये है 1194, ये दिख रहा है इसमें। हाँ वही ना बोला, ये है टनल। तो तो ये 1194 ये वीपीएन टनल एस्टैब्लिश कर रहा है मेंबर ग्रिड के साथ, और इस पे ये अपना जो है कम्युनिकेशन चला रही है के ऊपर। अब वो था ऑथेंटिकेशंस अच्छे का पोर्ट यूडीपी पोर्ट 802। उधर देखें, हाँ देखो वहां पे ट्रांजेक्शन देखिएगा ओपन व्यू का। as connected to the grid master है ना order 2। ये भी 1194 दिखा रहा है इसमें, हाँ ये भी 1194 दिखा रहा है। 1194 नहीं दिखाएगा। नहीं, वो 382 क्यों दिखा रहा है उधर? इधर तो 1194 दिख रहा है। वो ना मेंबर ग्रिड के बीच का वो मास्टर, वो उनका ग्रिड मास्टर और कैंडिडेट के बीच का है। वो तो मिल गया, मास्टर टू मास्टर का नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। 802 वही बता रहा था। देखो वहां पे मास्टर टू मास्टर अगर देखोगे नहीं, वो तो दिख रहा है इसमें, लेकिन अभी 80 यूडीपी देखो ओपन व्यू ट्रैफिक देख रहे हो तो वहां पे 1194 दिखेगा क्योंकि वो वीपीएन टनल का पार्ट है। और अगर सिर्फ यूडीपी ट्रैफिक देखोगे बिटवीन ग्रिड मास्टर और ये ग्रिड कैंडिडेट तो वहां पे दिखेगा कि ऑथेंटिकेशन के लिए 802 यूज कर रहा है। वो सो ओके, सॉरी यार, मैं अभी फिर से ज्वाइन किया हूँ। तो वो पोर्ट नंबर 802 पे कर रहे हैं ग्रिड टू ग्रिड। नहीं, वो पोर्ट नंबर 802 जो है ना ग्रिड और कैंडिडेट ये अपना जो एचए कम्युनिकेशन कर रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए वो 802 यूडीपी पे कर रहा है। अभी ओपन वीपीएन ये जब इन्होंने मेंबर बनाया तो मेंबर और ग्रिड मास्टर के बीच में ओपन व्यू टनल एस्टैब्लिश हुआ। तो ओपन व्यू जो है यूडीपी पोर्ट 1194 पे आ रहा है। ठीक है, तो 1194 जो है वहां पे तो की एक्सचेंज हो रहा होगा ना 1194 पे। हाँ, ये दिखा रहा है ना आप, ये देखिए ना, सोर्स 1194, डेस्टिनेशन 1194। ये ओपन व्यू को एक्सपेंड करो, उसका पेलोड है यूडीपी के अंदर का ये जो खुला है नीचे 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 सबसे ये ना, ये उसको एक्सपेंड करो, ये उसका पेलोड है। अब चूंकि डेटा को करो ओपन तो ये जो एनक्रिप्टेड है नहीं दिखाई देगा। तो जो ये टनल जो है एनक्रिप्टेड एक्सचेंज कर रहा है ट्रैफिक। ओके, बस इतना ही है कि यूडीपी पोर्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं। अभी हम अगर ग्रेड पे जा रहे हैं, मनीष जी आप तो फिर से आ गए। तो सुशील जी अगर आप वापस वही सिसलॉग में अगर आप फिल्टर जैसे आपने फिल्टर किया कर रखे थे लॉग्स, वहां पे 1194 था, वहां पे अगर आप ऊपर शो फिल्टर में जाके नहीं, वहां पे लिखा है ना ब्लू कलर का बीच में सेंटर में शो फिल्टर। हाँ, यहाँ पे मैसेज पे जाओ और वहां पे कंटेन्स एक 1194 करना और एक बार 2114 करना। हाँ, तो आप लोग ये मैसेज देख रहे थे 1194 वाले जो वीपीएन नोड। हाँ, दोनों एचएपीआर के बीच में भी चल रहा है, ये उधर नहीं दिख रहा है लेकिन एचएपीआर पे भी चल रहा है। देखो 3.3.12 पे चल रहा है आप। क्योंकि जो की एक्सचेंज है वो सब इसी पे होगी। नहीं, लेकिन इसके बाद का नहीं दिख रहा कुछ भी, इसके पहले का नहीं दिख रहा। ये 4.2 के बाद से ही दिख रहा है, मतलब ये मेंबर और मास्टर के बीच का कम्युनिकेशन है। वही मैं बोल रहा हूँ तुमसे। हाँ, ये विमल जी ठीक बोल रहे हैं। अब हम 2114 को देखते हैं। 2114 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, एक ही पैकेट दिख रहा है इसमें। नहीं, वो तो कुछ और ही है, इट्स नॉट इवन 2114, वो तो मैसेज में कुछ हाँ लिखा है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मतलब ही नहीं, इसमें वो होगा, वो डिजिट आ रहा होगा इसलिए दिखा रहा है 2114। ये है इधर। अभी डेटाबेस कुछ है जो एक्सचेंज करेगा ये? नहीं, अभी डेटाबेस नहीं है। तो फिर डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए कुछ होगा तब ना वो दिखेगा। हाँ, बनाएंगे जब करेगा हाँ, सिंक्रोनाइज।
तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसको। ठीक है मनीष जी, ग्रिड मेंबर भी हमने ऐड करा दिया, हमारा एचए भी रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, टेस्टिंग भी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट ठीक है। कॉल है, हम इसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कंटेनर और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक्सटेंसिबल एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर करेंगे। देन ये मैं आपके शायद आप ज्वाइन नहीं हुए थे, जहाँ तक मैं बता रहा था, जब ये एडी सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर किया था, karmaruters.com डोमेन है, इसमें फॉरेस्ट है, और ये इसको हम विंडोज से ज्वाइन करा दिया था। तो ये एडी यूजर से ये क्लाइंट ज्वाइन मतलब लॉगिन कर सकते हैं हम ऑन Okay. दिस यूजर विल टेक द आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस डीएचसीपी सर्वर and similarly this client will take the IP address from this DHCP server, we will make this। और सेकंड ये अपना सेकंड जो अपना नेक्स्ट वीक का टारगेट है, another target is we will configure the failover or association of the DHCP server। Okay, so we will pick one of the grid master or candidate and one this grid member and create the FOA and assign over the leases। अगला टारगेट ये रहेगा हमारा कि इतना कॉन्फ़िगर होने के बाद इन्फो ब्लॉक्स का एडीसी ऑथेंटिकेशन कराना है हमें। तो सपोज हमारा जो यूजर है, हमें अगर एडीसी लॉगिन करना है इसमें, क्योंकि एक एडमिन यूजर नॉट सफिशिएंट, सो हमारे पास जैसे नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो एक हम ग्रुप बना देंगे कि भाई ये डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आईपीएम एडमिनिस्ट्रेटर है, या कोई पर्टिकुलर एक पावर यूजर है, उसको एक पर्टिकुलर एक या दो कंटेनर का ही एक्सेस देना है, तो वो भी पॉसिबल है, तो वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा फिर। Okay. चलो ठीक है जी। ठीक है, आई थिंक लास्ट 1 आवर की रिकॉर्डिंग वुड बी मोर बेनिफिशियल, वहाँ भी सब फिर से हुआ होगा। आज का ना, हाँ मैं ये तो रिकॉर्डिंग